विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ कल्चरल कमिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, और साथ ही शिक्षक दिवस की आप सभी गुरुजनों को, सुधीजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस मधुर बेला में मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ और आज के इस कार्यक्रम का आरंभ दो पंक्तियों से करना चाहूँगी। चांदनी चांद से मिलती है तो रोशन जमाल करती है, चांदनी चांद से मिलती है तो रोशन जमाल करती है, खुशी से खुशी मिले तो ख्वाहिश कमाल करती है। ये विद्वता के नूर की रौनक महफिल है मेरे मित्रों, ये विद्वता नूर की रौनक महफिल है मेरे मित्रों, ये महफिल सभी सितारों का इस्तकबाल करती है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रेरणा स्रोत पूजनीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला सर, कुल सचिव सर, सभी सीनियर टीचर्स, DSW प्रोफेसर सैयद हैदर अली सर, सभी संकाय अध्यक्ष, मेरे सीनियर्स एंड माय कलीग्स, आप सभी का यथा योग्य अभिवादन है, स्वागत है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि किसी भी कार्यक्रम का आयोजन ईश्वर के आशीर्वाद के बगैर अधूरा रहता है, तो आज तो वैसे भी शिक्षा का दिवस है, आज शिक्षक दिवस है। For this, I would like to request our Honorable Vice Chancellor sir to kindly kindle the lamp, and for this honor, I would like to request Dr. Priyanka to do the honor. Professor Tanveer Khadeja, Ehtisham sir, Chandana ma'am, Sharfi sir of guide that guide us towards progress, equality and freedom. With this lamp lighting, we like to thank the goddess of knowledge for blessing. साथ ही मैं कुलपति महोदय से निवेदन करूंगी कि वह हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरफ से हमारी श्रद्धा भावनाएं पुष्प के रूप में अर्पित करें। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से की गड़गड़ाहट से एक बार इस पवित्र क्षण का अनुमोदन करें कि पता चलना चाहिए कि आज हमारा दिन है। Now I would like to request Professor Tanveer Khadeja, Chairperson Cultural Committee, to please join over the dais. Dr. Priyanka, coordinator of this program, to please join us over the dais. जैसा कि विदित है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। माता पिता के बाद शिक्षक ही होता है जो हमारे जीवन में अहम महत्व रखता है। शिक्षक दिवस एक मिसाल है उस रिश्ते का जो एक गुरु और उसके शिष्य के बीच होता है, और मुझे लगता है रविवार होने के कारण वो जो असीम कड़ी जिसे हम शिष्य कहते हैं उसको कहीं ना कहीं हम सभी मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर संडे नहीं होता तो सुबह से ही हम सबके विभागों में ये सेलिब्रेशन शुरू हो चुका होता, जिसे शायद कहीं ना कहीं हम सारे शिक्षक मिस कर रहे हैं। खैर, कहा जाता है a teacher is a continuous learner and a learner first, to respect and remember that spirit and to deliver the welcome speech. I would like to invite Professor Tanveer Khadeja to address the august gathering. Please welcome Professor Tanveer Khadeja. Good morning to all of you. Today we have gathered here to celebrate the Teachers' Day. I welcome our Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Amit Shukla ji, our esteemed gathering of the intellectuals, our teaching faculty, administrative staff and supporting staff, and some of my dear students who have made an effort to join us on
on this Sunday to celebrate this occasion. Today is a very special occasion indeed, which we commemorate the birth anniversary of Dr. Radhakrishnan and celebrate it in form of Teachers Day. As we all know, that mother is the first teacher of a child. We all respect mother as the first teacher of a child because she nurtures and protects the child. Before handing the child over for the further grooming to the teacher when the child is sent to school. And from there a strong relationship, a strong bond established between the teacher and the taught. A teacher becomes a guide, a philosopher, and sometimes a mentor also for the student. And this relationship continues and keep reaping rewards for the teacher as well as for the taught. The future prospects of a child, the grooming of personality, how to face the outer world, all this is done with the help of a teacher. A child has a very impressionable mind. Whatever behavior, the words of the teacher are there. The child is trying to imbibe that in his own personality. So much so that you all must be aware of it. You all have children and you yourself must have been children and you have been taught by teachers. The best form of respect which a teacher receives is when the mother goes and complains to the teacher कि मैडम ये आप इसको समझाइए, मेरी तो मानता नहीं है, आप किसको लेगा? तो उस दिन ऐसा एहसास होता है कि you feel so much, your heart is filled with pride कि क्या मेरी अहमियत है उस बच्चे की मुस्तकबिल में, क्या क्या हम रोल प्ले कर रहे हैं. माँ का कितना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है जो हमसे ये कह रही है कि आप इसको समझा दीजिए. Secondly, the compliment which comes to the teacher is also in the form when a child when he is doing his homework at home और फिर मम्मा को बोलता है मम्मा ऐसे नहीं करना है, हमारी मैम ने ऐसे नहीं बताया, ऐसे करने को बताया. तो उस टाइम भी लगता है कि मदर जो पढ़ा रही बच्चे को वो समझना चाह रही टीचर को बेटा कैसे समझाया, वैसे ही उसको होमवर्क करा रही. और ये ऑनर और रिस्पेक्ट कहीं पर खत्म नहीं होता. इट इज नेवर एंडिंग बिकॉज इट इज द ओनली नोबल प्रोफेशन जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद इवन आफ्टर योर डेथ you are getting the honor and respect from the children as well as the parents as well as the society. बहुत ज़माने बाद कभी कभी आपको बच्चे मिल जाते हैं, आपके आके पैर छूते हैं एंड जैसे अरे सर मुझे आज भी वो टॉपिक याद है जो आप क्लास में पढ़ाते थे. इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकता. दैट इज व्हाट आई फील एंड वट एवर आई एम सेइंग टुडे इज द हार्टफुल ग्रैटिट्यूड व्हिच आई हैव फॉर माय ओन टीचर्स, स्पेशली माय स्कूल टीचर्स. टुडे आई वुड लाइक टू रिमेंबर माय इंग्लिश टीचर. जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ये नहीं पता था मैं कभी इंग्लिश टीचर बनूंगी. She was Miss Arzu Qureshi Namartinian. Later on, she became Mrs. Baker. She married a teacher from Namartinian Boys College. She was my English teacher. She used to teach Hardy to us, and I still remember the way she used to teach us. और हमने realize भी नहीं किया, सब consciously कहीं पे ऐसा होता चला गया कि शायद हमारी personality उनके हिसाब से groom होती चलेगी. Recently, when I shared a picture, old-time picture of my school days, sitting with her, she was my class teacher as well. My new friends who have not known me from my college days, they commented on the picture, ma'am, are you this? Are you there in the picture? They did so much of striking resemblance was there that even I felt that the same timeless chiffon sari which she used to wear, I started wearing it. I never had a desire to grow my hair, although all the girls do like to grow their hair, and it was the same curly short hair which she used to have. So today I realized that how much I have groomed myself. She has become a role model for me, and today I am an English teacher. I never dreamt of that, in fact. So these things are, we feel so much in our heart. Our Professor Abdi Saab, who used to teach me in MA, today I am also looking for advice from him. I give a call to him. I find out some time for him whenever he is there in Lucknow. तो अभी भी वो अटैचमेंट है, लगता है जितना वो मुझे बताएंगे, समझाएंगे, मेरे वेल विशर हैं, शायद कोई और हमें इस तरह गाइड कर पाएगा. ये सब टीचर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले करते हैं. और आज सिर्फ हम अपने लिए नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो टीचर्स ने हमें बनाया है, बिकॉज ऑफ whom we are here today and we are standing and addressing the gathering. I would like to salute all those teachers. And one more teacher who is also among us, Professor Anil Kumar Shukla ji, Honorable Vice Chancellor. वो भी खुद एक टीचर एकेडमिक प्रोफेशन से हैं और हम सब के लिए गाइडिंग फोर्स हैं. हम लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो ऑब्वियसली परफेक्शन ऑफ अ टीचर, we should look like a teacher, we should behave like a teacher, we should speak like a teacher. ये उनसे बेहतर कोई हमें नहीं सिखा सकता. Thank you so much. Thank you.
हमेशा से स्टूडेंट्स का रोल मॉडल होता है और हम सभी की लाइफ में एक कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल ज़रूर होगा। गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। With these words, I would like to request Mr. Amit to kindly play the Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। Thank you, Goddess Saraswati, for blessing us. Today, as we know that we are gathered here to celebrate and honor the noblest profession in the world. इसी फहरिस्त में मैं हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर सैयद हैदर अली सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपने उद्गार व्यक्त कर हम सभी का पथ प्रदर्शित करें। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू प्रोफेसर सैयद हैदर अली सर। मंच पे उपस्थित हमारे साथ और समस्त शिक्षक छात्र और हमारे विश्वविद्यालय के कर्मठ कर्मचारी, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात हमको आज यही करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और चीज़ों में बदलाव आ रहा है। 26 जनवरी को भी हम लोगों ने इसी पे बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करी थी। और जिस तरीके से बदलाव आ रहा है तो हम समस्त शिक्षकों को उन बदलावों को समझना पड़ेगा, उसको अडैप्ट करना पड़ेगा और अपने छात्रों को उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि जब इतनी तेज़ी से बदलाव हो तो अगर वो बदलाव हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारे छात्र छात्राएं कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए हमको निरंतर काम करना होगा, हमको समझना होगा और अपने स्टूडेंट्स को उन सारी चीज़ों के लिए अपडेट करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिबेटेबल होती हैं, कुछ चीज़ें हमको सही लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें गलत लगती हैं, लेकिन वो आगे रिसर्च का विषय होगा। देखा जाएगा कि क्या क्या बदलाव और किए जाएं जिससे हम लोग सतत इवैल्यूएशन कर सकें। अभी तक जो हम लोग करते थे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते थे स्टूडेंट्स का, जिसमें हम लोग 30 मार्क्स की बात होती थी। अब जो बात आ रही है वो पूरे समग्र इवैल्यूएशन की बात आ रही है कि कैसे हम स्टूडेंट्स को जो है उसकी पर्सनालिटी के लिए, उसके को करिकुलर के लिए, उसके फिजिकल अवेयरनेस के लिए, हर चीज़ के लिए कैसे हम उसको इवैल्यूएट करें, कैसे हम उसको करें। तो ये सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा,
हमको खुद भी अडॉप्ट करना पड़ेगा और अपने छात्रों को उसके बारे में तैयार रखना पड़ेगा, जिससे वो एक अच्छे राज्य का, अच्छे जो है देश का, अपने भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाने की कोशिश की किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम हमारे सिलेबस में एकोमोडेट भी कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स की रीस्किलिंग और अब स्किलिंग की बात लगातार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर संजीव त्रिवेदी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो बुके ऑनरेबल वाइस चांसलर सर को भेंट करें। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सात समुंदर की मास करूं, गुनगुन लिखा न जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर मसूद आलम फरहाई सर को, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, कि वह यहाँ पोडियम पर आए और 2 शब्द कहें। प्रोफेसर मसूद आलम, please give a huge round of applause. इज्जत माब जनाब शकील जामिया साहब, रजिस्ट्रार साहब, नियाब मैम, नियाब साहब, कलीग्स, स्टूडेंट्स और कर्मचारी, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी टीचर्स डे। सर, आज के दिन जिस टॉपिक पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। हर मजहब में, हर समाज में एजुकेशन बहुत वैल्यू रही है। कि हमने जो सस्ता सुना और सस्ती की दोबारा आता है, इनकी देरी मानी जाता है। इस तरह इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। कुरान की पहली आयत जो उसमें कहा कि इल्म हासिल करो। फिर खुद प्रॉफिट ने कहा कि मैं टीचर बना के भेजा गया। और जो इस्लामिक थियोलॉजी में चीज़ आती है कि इंसान को फरिश्तों पे फजलत हासिल है सिर्फ इल्म की वजह से। तो इंसान की असल ये नहीं है कि उसने क्या कमाया, उसकी असल ये है कि उसको लोग कैसे याद करते हैं। दौलत कमाया, बिल्डिंग बनाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद मर जाता है, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा टीचर था। तो हमारे असातिज़ा से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। हमें बहुत सिखाते थे वो कि टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। बताते थे। हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर यासिन सिद्दीकी साहब अलीगढ़ में, प्रोफेसर फैज़ान अहमद भाई साहब अलीगढ़ में थे। वो दिल्ली में थे प्रोफेसर सैयद रहमान साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे प्रोफेसर हमारे। वो हमें बताते थे कि टीचर क्या होना चाहिए, एटीट्यूड, बिहेवियर, कमिटमेंट, कुर्बानी, इंस्पायरेशन, और कैसे हम वैल्यू बच्चों को दें। मैं आपको बताऊं कि मैं BA फर्स्ट ईयर पढ़ता था और मेरे उस्ताद प्रोफेसर यासिन सिद्दीकी साहब क्लास के बाद उसके मेरे चैम्बर में आओ, हम चाय पिलाते थे। तुमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया तुमने। मेरे उस्ताद थे अशरफ साहब DU के अंदर। वो घर बुला करके खुद से अपने हाथों से चिकन बनाते थे, खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे। तुम्हारा जो आर्टिकल बहुत अच्छा है। तो वो बिहेवियर हम बच्चों में ले, अपने स्टूडेंट्स में दें। और जो टीचर टाइम से नहीं आता है, जो टीचर क्लास में सही से नहीं पढ़ाता है, सिर्फ टाइम को किल करता है, उससे बच्चे इंस्पायर नहीं होते हैं। बच्चे बाद में नाम रखना शुरू कर देते हैं। अभी कल मुझे एक पोस्ट मिला फेसबुक पे, उसमें किसी को लिखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन यह है कि उस्ताद को पढ़ाना ना आता हो, वो क्लास में सिर्फ टाइम पास करता हो, बच्चों को उनका हक न देता हो। सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम टीचर नहीं है। अगर आपका मिजाज, सर्फ, खुदशनासी और अंदाज़े गुफ्तगू उस्तादों वाला ना हो तो बराए करम उस्ताद न बनिए। क्योंकि उस्ताद नस्लों को बनाता है और उस्ताद नस्लों को बिगाड़ता है। मेरे एक उस्ताद थे B.Ed में अलीगढ़ के अंदर, प्रोफेसर चौहान साहब। मुझे कहा करते थे, बेटा जब भी तुम्हें मौका मिले
और जनरल बात यह है कि सिलेक्शन में जो टीचर सिलेक्शन है, कभी कास्ट, मजहब, इलाका में देखना। अगर तुमने एक नालायक आदमी को सिलेक्ट कर लिया तो तुमने पूरे 30 साल की नस्लों को खराब कर दिया। मैं उसके अरबी का टीचर हूँ, तो उस्ताद के लिए अरबी शेर का है, वो शौकी साहब हैं, बहुत मारूफ शायर हैं इजिप्ट के। वो कहते हैं कुम लिल मुअल्लिमे वफ़ी तब्जीला कादल मुअल्लिमा यकून रसूला आलम का अशफा और अजल मिनल लज़ी यबनी व युनशिल अनफस व अक़ूला, कि आप उस्ताद के लिए खड़े हो जाइए, उनको भरपूर जो इज्जत दीजिए। उम्मीद है कि उस्ताद का रुतबा जो है रसूल के बराबर हो जाए। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इंसान बनाने के साथ साथ अकल को भी बनाता है? उर्दू का एक शेर है, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर पिघल सकते हैं। देखा न कोई कोहकुन फरियाद के बगैर, आता नहीं फन कोई उस्ताद के बगैर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज अगर हम सब यहाँ बैठे हैं तो उसका श्रेय शायद हमारे शिक्षकों को ही जाना है। The prize of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best ourselves to the task at hand. With these words, I would like to invite Professor Sharfi sir on the podium to share his views upon today's Nobel Day. इज़्ज़त-माब वाइस चांसलर प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला साहब, रजिस्ट्रार साहब, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब, फयाज साहब और हमारे साथी, आज मजहूर साहब ने कुछ तल्ख़ बातें भी कहीं और अच्छी बातें कहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी यहाँ हैं किसी ना किसी से मुतासिर होकर के इस लाइन में या जो भी जॉब चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो किसी से मुतासिर होकर के ही करते हैं। किरदार की बात मसूद साहब ने कही, वाकई हम लोगों को खुद अपना अहाता करना चाहिए, हमें मुहासबा करना चाहिए कि हमारे किरदार क्या है। जहाँ तक तलबा से इज्जत की बात है, दौर बदल रहा है। हम लोग पढ़ते थे तो चाहे जिस डिपार्टमेंट का टीचर होता था उसे देख करके यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के किनारे हो जाते थे कि आ रहा है। आज हम इस छोटी सी यूनिवर्सिटी में हैं, मैं ये समझता हूँ टीचर गुजर जाता है और बच्चा विश करना तो बड़ी बात, किनारे नहीं होने चाहता। उसमें हमारी अपनी भी कमियां हैं और उन बच्चों के घर के परवरिश की बात है। बात काफ़ी आगे जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे किरदार को संवारने सजाने में ये जो स्टूडेंट हैं अगर ये गौर करें तो बेहतर होगा। हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। पढ़ाने को तो बचपन से लेके और इस उम्र तक तमाम लोगों ने पढ़ाया और भी हम लोग को पढ़ा रहे हैं। बहुत से लोगों से हम डिस्कस करते हैं, अपना जानना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट को, और उसमें कोई एक आध ही टीचर ऐसा होता है जिसको आप मॉडल बना सकते हैं और उसी से राय लेकर के कहीं ना कहीं जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में जाने को हो। मेरे भी उस्ताद थे, बीए से लेकर के एमए पीएचडी तक उनसे, जबकि नहायत ही शरीफ सर प्रोफेसर महमूद हसन साहब उर्दू डिपार्टमेंट में और मलिदा साहब, ये लोग वाकई नहायत शरीफ, हम लोग उस पैमाने में फिट नहीं होते और मगर इस तरह के थे कि इस दौर में हम चाहते हैं कि सिफारिश, हमसे मुराद है हमारे तलबा स्टूडेंट, कि हम सिफारिश करें और सिफारिश हम सुने। उस दौर में उन लोगों ने किया कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ गाइड करते रहे कि ऐसा करो, कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे।
और नौकरी के मामले में, यहाँ तक आने के मामले में उनका ये कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने जो पढ़ाया, दिल जमाई से पढ़ाया, वो जो कुछ नहीं हमारी समझ में आया उसे हमने अखज़ किया, यानी करेक्ट किया। लेकिन उनकी सिफारिश ना करने के बावजूद ताहयात जब तक वो जिंदा रहे, मैं एक शागिर्द के हैसियत से उनके यहाँ जब भी होता था हाजिर होता था। हमारा अपना किरदार यानी हम लोगों का ऐसा हो कि वो स्टूडेंट जो हैं उससे खुद ही इम्प्रेस हों और हमारी इज्जत करें। हम जो दे सकते हैं, मसूद साहब ने कहा पढ़ाने ना पढ़ाने, देखिए जो आ गया है वो सलाहियत सब में बराबर नहीं होती। और हमारे अहबाब हैं, बहुत जानते हैं, हम हो सकता हूँ उनके बराबर ना जानते हो, उनसे आधा ना जानते हो। बस ये है कि अपनी ड्यूटीज, मैं एक छोटे से कॉलेज से नौकरी, मैंने छोटा तो नहीं बहुत बड़ा कॉलेज सेंट जॉन्स कॉलेज शुरू की। सर वहाँ टीचर्स का ये था कि प्रिंसिपल को ये नहीं देखना था कि क्लास हो रही या नहीं। टीचर अपनी क्लास में जाते थे, क्लास लेते थे, उसके बाद प्रिंसिपल को ये नहीं मतलब होता था कि टीचर कहाँ है, क्या कर रहा है, मगर क्लास नहीं छूटनी चाहिए और बड़ी ईमानदारी से लेते आए। मैं भी 22-23 साल वहाँ नौकरी की और उस तरह का हमें अपने किरदार को सुधारना चाहिए ताकि हमारे आने वाली नस्लें हमें मिसाल बना सके। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने साथियों और अपने वाइस चांसलर साहब, इन सबको इस शिक्षक दिवस के मौके पर मुबारकबाद देता हूं और खुद को भी अपना मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much sir for motivating all of us. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम हर दिन हर पल किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं और शिक्षक से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। भले ही पेशे से शिक्षक हैं पर हम सभी दिल और आत्मा से सदैव लर्नर्स रहते हैं। उद्बोधन की इस कड़ी में मैं अब हमारी डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज प्रोफेसर चंदना डे मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो यहाँ आए और अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। साथ ही 2 पंक्तियाँ मैम के लिए कहना चाहूँगी क्योंकि मैम इज माई डीन। उसूलों पर जहाँ आज आए टकराना जरूरी है, उसूलों पे जहाँ आज आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। With these words, please welcome Professor Chandana Day. माननीय कुलपति महोदय, इस सभागार में उपस्थित अधिकारीगण, मेरे शिक्षक साथी और सभी अतिथि, आप सभी को हृदय से शिक्षक दिवस का बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। एक शिक्षक के रूप में क्या आज हम एक विचार कर सकते हैं कि हम तो शिक्षक हैं, लेकिन हमारा शिक्षक कौन है? ये चयन हमें ही करना होगा। इस चयन की प्रक्रिया में हम प्रकृति को शिक्षक माने, जैसा कि रूसो या रविंद्रनाथ ठाकुर ने माना? क्या हम किसी ईश्वर या ईश को अपना शिक्षक माने? या हम किसी ग्रंथ को भी अपना शिक्षक यदि मानते हैं, तो ये शिक्षक हमारा साथ जीवन पर्यंत देता है। हमारे हिंदू धर्म में श्रुति, स्मृति, उपनिषदों का सार सभी कुछ व्यवहारिक रूप में भागवत गीता में समाहित कर हमारे सामने उसे एक व्यवहारिक रूप देकर प्रस्तुत किया गया। चाहे वो असमंजस में पड़े अर्जुन को श्री कृष्ण का निर्देश हो कि वो अपने स्वजनों के से युद्ध करें अथवा नहीं, अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये असमंजस हमारे जीवन में हमेशा ही रहता है। आज शायद कहीं ना कहीं हम सभी इस तरह की परिस्थिति का सामना करते हैं और फिर हमें आवश्यकता होती है एक ऐसे काउंसलर की
ऐसे निर्देशक की जो हमारा पथ प्रदर्शन उचित प्रकार से कर सके। एक कहानी के माध्यम से शिक्षक किस तरह से अपने छात्र के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। छोटी सी कहानी है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो हम सभी उसको साझा कर लेंगे। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव था जहाँ पर एक बालक, नाम कुछ और था लेकिन लोगों ने उसका नाम वेमना रख दिया था। 15 वर्ष की आयु का ये बालक अक्षर ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया था, सीख ही नहीं पाते थे वो। उनके एक शिक्षक या गुरु थे, बहुत प्रयास करते, परंतु ये बालक फिर भी, लोग इसे कहते कि शायद बुद्धि से कोसों दूर था, वो सीख नहीं पाता था अक्षरों को भी। एक दिन उसके गुरु को कोई आवश्यक कार्य पड़ा और उन्होंने अपने इस 15 वर्षीय छात्र से कहा कि देखो, मैं नदी में स्नान करने जाता हूँ, तब तक तो मेरे कपड़े पकड़ के रखना, ये मेरे वस्त्र जो हैं ये धरती पे ना गिरे, मैले ना हो जाए। ऐसा कहकर गुरु स्नान के लिए चले गए और जब वो स्नान करके लौटे तो उन्होंने अपने छात्र को पुकारा, वेमना। सुनते ही वो बालक दौड़कर अपने गुरु के पास पहुंच गया और उसके हाथ से वो जो गुरु के वस्त्र थे वो छूट गए। निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं हुआ शायद। गुरु ने उसको जब देखा, उसके पास वो बालक पहुंचा तो बहुत हताशा हुई गुरु को। उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, लो। एक चौक उसके हाथ में दिया और उससे कहा कि ये बड़ा सा पत्थर है, इस पर राम नाम लिखो जब तक मैं लौटकर आता हूँ। संध्या के समय गुरु लौटकर आए तो क्या देखते हैं, बालक ने पहले तो चौक का प्रयोग करके राम का नाम लिखना आरंभ किया, परंतु जैसा कि हम सभी टीचर जानते हैं चौक तो थोड़े समय में समाप्त हो जाती है, तो फिर वो और चौक का प्रयोग नहीं कर पाया। तो उसने अपनी अंगुलियों से ही राम का नाम लिखना जारी रखा। बालक के मन में एक भावना थी कि आज गुरु मुझसे नाराज होकर या निराश होकर गए हैं। संध्या के समय जब गुरु लौटे तो उन्होंने देखा कि बालक की अंगुलियों से रक्तस्राव हो रहा था, परंतु उसने लिखना बंद नहीं किया। गुरु ने आकर बालक को गले से लगा लिया और उससे कहा कि ये मैंने क्या कर दिया, आज शायद मुझसे कोई भूल हो गई। परंतु जानते हैं आप कि अगले ही दिन से एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो बालक एक महान कवि और संत बन गया। सैकड़ों कविताएं उन्होंने लिखी हैं। आंध्रा का शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें संत वेमना की पुस्तक न रखी होती हो, और जीवन ही उनका परिवर्तित हो गया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर हम अपना उद्देश्य स्पष्ट रखें और उसके प्रति हमारा जो प्रयास है वो जारी रहे, तो ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है जिसकी प्राप्ति हम नहीं कर सकते। आज मैं अपने व्याख्यान को यही विराम दूंगी। शिव खेड़ा की बहुत चर्चा होती है यहाँ, उनकी ही 2 लाइनों से, 2 वाक्यों से। उन्होंने विजेता और एक व्यक्ति जो पराजित हो गया हो, हार गया हो, ऐसे 2 लोगों के बीच अंतर करते हुए कहा है। विजेता हमेशा ये कहता है कि मुझे ये करना होगा, मैं ये करूँगा, परंतु हारा हुआ व्यक्ति जो पराजित हो गया है उसका कथन हमेशा यही होता है, यह होना चाहिए था। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही खूबसूरत वृत्तांत आपने हम सभी के साथ आज इस पावन अवसर पर शेयर किया और मुझे लगता है हम सभी इसको लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ में एज अ मॉरल अपनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आपकी बात सुन के मुझे 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। The most profound way to journey through life is to learn your character from trees, your values from roots, and change from leaves. Stand tall, remain rooted, and adapt to all seasons.
we know that education is not preparation for life. Education is life itself. With these words, I would like to call upon Professor Ehtisham Ahmed, Dean, Faculty of Commerce and Management. So, sir, most welcome. Please put your hands together to welcome Professor Ehtisham Ahmed, Head, Department of Commerce. ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल डीन्स ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज, वेनरेबल रजिस्ट्रार साहब, रजिस्ट्रार साहब के डिपार्टमेंट के सभी लोग, डिग्निटरीज एट द डाइस, डिग्निटरीज ऑफ द डाइस एंड डियर स्टूडेंट्स। 5 सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। हम सब लोग भी आज यहाँ शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बड़ी विडंबना है कि हम अपने बारे में अपने ही सेलिब्रेशन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कोशिश करेंगे हम लोग कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल दौर में जो ज़रूरतें आज के टीचर्स की होती जा रही हैं, जो क्वालिफिकेशंस आज के टीचर्स की होती जा रही हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आज के टीचर्स की होती जा रही हैं, उसको हम आत्मसात करें, अपने अंदर उतारें, तभी जा कर के हम इस बदलते हुए माहौल, बदलते हुए परिवेश में अपने आप को एक बेहतर टीचर के तौर पर फिट कर पाएंगे। सभी लोग आए, उन लोगों ने अपनी अपनी बात कही। ये बात सही है कि शिक्षक स्टूडेंट्स की वो आंखें खोलता है जो वो नंगी आंखों से नहीं देख पाता। कहने का तात्पर्य ये है कि मन की आंखें खोलता है, मस्तिष्क की आंखें खोलता है, उसको वो कुछ दिखाने की कोशिश करता है जो शायद वो न जान पाए, न देख पाता। इसलिए शिक्षक की अपनी एक महत्ता है, एक इम्पोर्टेंस है, और शायद इसीलिए हम लोग आज का ये दिन सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हमारे पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1888 को हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सारा कार्यक्रम हम लोग, उसकी जो थीम है वो उसी के अंतर्गत है कि हम लोग इतने महान पुरुष को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी चीज़ों को अगर हम आत्मसात नहीं करते हैं तो हम अपने में शायद पूरा गुणात्मक सुधार नहीं कर पाएंगे। उनके कुछ कोट्स पॉपुलर जो हैं मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ, कि ताकि हम लोगों को अपने आप को और सुधार करने में और इम्प्रूव करने में कुछ न कुछ सहायता उनके कोट से ज़रूर मिल सके। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े पापी का भी भविष्य होता है जैसे कि सबसे महान संत का अतीत रहा है। कोई भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना वो सोचता है। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, क्योंकि तुम अपने पड़ोसी हो। ये भ्रम है, आपको लगता है कि आपका पड़ोसी आपके अलावा कोई और है। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा शिक्षक, सबसे अच्छे शिक्षक वे हैं जो हमें अपने लिए सोचने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को देश का सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए।
ये ज़रूरत है आज की, जो उनके कोट्स हैं मशहूर, जो फेमस कोट्स हैं उनके, कि हम इन चीज़ों को अपने अंतर्गत अपने अंदर आत्मसात करें तो हम एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। रोल मॉडल की बात बहुत से लोगों ने की। जाहिर सी बात है कि शिक्षक रोल मॉडल होता है, और रोल मॉडल यानी उसकी पूरी जिंदगी जो है वो रोल मॉडल के तौर पे एक स्टूडेंट देखता है। उसके जीवन के सभी आयाम पर वो नजर डालता है कि कैसे रहता है, कैसे ओढ़ता, पहनता, खाता, बोलता, चलता, कैसे विश्वास जीतता है लोगों का। सारी चीजें रोल मॉडल में आ जाती हैं। तो आज की जरूरत है कि हम बेहतर रोल मॉडल बन सकें। मैं कमिट करता हूं आप लोगों के सामने कि मैं कोशिश ये करूंगा आज के इस 5 सितंबर को कि मैं बेहतर रोल मॉडल बन सकूं आज के शिक्षक दिवस पे, और ताकि आगे आने वाली नस्लों को हम कुछ दे सकें। शेर और लोगों ने भी पढ़ा था कि नहीं, शेर उर्दू में कहा है, उसमें हिंदी का भी वो हो सकता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागूं पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो ये एक शिक्षक ही है जो उसके मन के चक्षु स्टूडेंट्स के, छात्रों के खोलता है और उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो स्किलिंग और रीस्किलिंग की बात की जा रही है, ये आज के ज़माने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं बताऊं कि मैं यहाँ आया था तो टाइप करना तो छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानता था, लेकिन अगर यहाँ कुछ दिन और रहा तो और भी बड़े काम का आदमी हो जाऊंगा। तो मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ कि ये जो चैलेंजेस हैं शिक्षकों के, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से कि लैक ऑफ टाइम प्लानिंग जो है वो हमारा एक चैलेंज है, लॉट ऑफ पेपर वर्क हमारा एक चैलेंज है, लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, यानी हम अपने स्टूडेंट्स को इवेलुएट कैसे करें, टेस्ट कैसे करें, ये हमारा चैलेंज है। चेंजिंग एजुकेशन ट्रेंड्स, ये हमारा चैलेंज है। लिमिटेशंस ऑफ डिसिप्लिनिंग स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में कैसे रखा जाए, ये हमारा चैलेंज है। लैक ऑफ सेल्फ टाइम, हमारे पास खुद समय नहीं होता है, चैलेंज है। टीचर्स आर मेड मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन दे शुड, जितने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए उससे बहुत ज़्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबल किए जाते हैं। अप्लाइंग प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, सभी तरह के छात्रों के लिए एक ही तरह का करिकुलम हम करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि छात्र अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अदरवाइज पे बेहतर और चर्चा कर सकते हैं, करिकुलम बनाने में बड़ी मदद की हम लोगों की। इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू बी मोर सेल्फ डायरेक्टेड, ये चैलेंज है कि हमको स्टूडेंट्स को सेल्फ डायरेक्टेड करना है। और लास्ट है कि टेक्स्ट बुक एक्सपोजर टू लर्निंग, यानी जो हमें लर्निंग है उसको टेक्स्ट बुक एक्सपोजर तक हम महदूद रखते हैं। तो ये आज के चैलेंजेस हैं टीचर्स के, बहुत थे लेकिन मैंने थोड़े से यहाँ चाहे कि शेयर करूँ। इन चैलेंजेस को हमें कहीं न कहीं से अपने अंदर आत्मसात करके उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सादर बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। आज के दिन पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों को एक बार दोबारा बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी अच्छी बातें हम सबके संग साझा की और आपने कहा था कि मैं आज के दिन ये प्रण करता हूँ कि मैं रोल मॉडल बनूंगा। सर आप बनेंगे नहीं, आप ऑलरेडी बहुतों के लिए रोल मॉडल है, मुझे लगता है। शिक्षक कहा जाता है जो शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, कमजोरी दूर करने वाला, जो विद्यार्थियों की हर गलती को क्षमा करने की भावना रखता हो और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसको शिखर तक ले जाता हो, वही एक सच्चा शिक्षक कहलाता है। With 2 lines, I would like to request Professor Maruf Mirza sir to come over the podium to share his views upon this noble moment. Yes, sir, we would love to hear you. Once you decide you want a good life, the universe will start moving things for you to have it. The people you need will happen, the doors you need to open will unblock. But not until you decide. Once you truly, sincerely decide, miracles will happen.
With these words, please welcome Professor Maruf Mirza. शिक्षक वही है जो कड़वाहट को निगलना जानता हो। शिक्षक वही है जिसके में धैर्य हो। शिक्षक वही है जो कहीं पे भी अपनी वाणी से कुछ भी बोले तो उसका अर्थ निकलता हो। आज शिक्षक डे के ऊपर तो सारे शिक्षकों के लिए, जो हमारे सारे शिक्षक यहाँ बैठे हैं, मैं बस यही कहूँगा, शिक्षक के लिए एक किसी शायर ने शेर कहा है, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। Thank you, sir. As we heard that respect is like a mirror. The more you show it to other people, the more it will reflect back on you. Moving ahead, जैसे कि हम सब जानते हैं कि संगीत संचार का सबसे प्रिय रिश्तेदार है। वह किसी भी पल को सुखद और आनंदमय बना सकता है, उदास मन को प्रफुल्लित कर सकता है। So without wasting much time, I would like to call upon our favorite, Hardik Aziz, Dr. Mazhar Khalid sir, to show the rhythm and melody in this atmosphere. हेलो, जब तक सर पोजीशन में रहे, लेट मी शेयर 2 लाइंस कि सर हेलो, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, अगर सर की तरफ से है ये, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो तालियों में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए तालियां किसी जोश से कम नहीं होती है। माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय कुल सचिव महोदय, उप कुल सचिव महोदय, सहायक कुल सचिव, सभी आदरणीय सम्मानित हमारे शिक्षकगण, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, and all my dear non-teaching staff, आज के इस दिवस पर मेरी ओर से शिक्षक दिवस पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। इस मौके पे मैं आज आपके सामने हुक्म हुआ है कि कुछ गीत पेश किए जाएं, तो मैं सबसे पहले एक प्रार्थना रूपी एक गीत पेश करूंगा और उसके बाद एक भजन। पेश खिदमत है। आवाज आ रही है मेरे पीछे?
खिलाड़ियों आप सबके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ एक बार अपने सहयोगी का स्वागत करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। आदरणीय कुलपति महोदय, समस्त सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं प्रिय साथी, कविता से पूर्व सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि मेरी दृष्टि में शिक्षक क्या है। सामाजिकता का परम सेवक, महामानवतावादी, संगीत के सूक्ष्म स्वर की तरह संवेदना के स्तर पर एक एक प्रतिक्रिया की अनुभूति रखने वाला, रूढ़िगत परंपरा से मुक्त व्यक्तित्व का धनी, मन से समाज सेवक, कार्य से कुशल नेतृत्व करता, ज्वालामुखी के शिखर पर बैठे व्यक्तियों को जीवन मंत्र देने वाला, पीड़ित मानवता की गहराइयों में उतरकर उसकी कुंठा, छटपटाहट और तड़पण को अंकित करने वाला, जननी एवं जन्मभूमि को श्रद्धामय रूप में स्वीकार करने वाला, शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक अग्निशिखा को प्रज्वलित करने वाला, दंभ के बुखार से दूर वाणी और मन दोनों को सदा भली भांति एकाग्र रखने वाला, बुद्ध की करुणा और मीरा की वेदना की प्रतिमूर्ति, जनमानस के सुख दुख पीड़ा को समझने वाला, शिक्षा के आकाश का ध्रुव तारा बनकर विभिन्न क्षेत्रों को उन्नति की लौ दिखाने वाला, अबोध विद्यार्थियों के सुधर भविष्य के प्रति सदा चिंतनशील, ऐसे शिक्षक समुदाय को मैं शत नमन करता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ और उस पर गर्व करता हूँ। मुझे यहाँ काव्य पाठ के लिए, कविता के लिए आमंत्रित किया गया है, तो मैं छोटी सी कविता जो मैंने अपने छात्र जीवन में कभी लिखी थी, उसका शीर्षक है अंतिम पत्र। और ये अंतिम पत्र जो छात्र जीवन का युवावस्था होती है, ये माया रूपी जो आकर्षण है, उसको संबोधित करते हुए लिखा था। उससे विदा लेते हुए कल्पना है, आप कल्पना में खो जाइए, कविता का आनंद लीजिए और चूंकि मेरी स्वरचित है तो मेरा मनोबल बढ़ाइए। कविता की प्रथम पंक्तियां संबोधन में ही 4 पंक्तियां गई हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। मेरी प्रिय दर्शनी, मेरी चिर संगनी, मेरी अभिनंदनी, मेरी आनंदनी, मेरी आराधनी, मेरी मंदाकिनी, मेरी चंद्रायनी, मेरी ये हृदय है मेरा, ये तेरा तो नहीं, प्रेम का कुंज जब तक बुझा तो नहीं, प्रीत की पीर उठती स्वतः दे प्रिय, मीत के प्रीत की बाध्यता तो नहीं। ये हृदय है मेरा, ये तेरा तो नहीं, प्रेम का कुंज जब तक बुझा तो नहीं, प्रीत की पीर उठती स्वतः है प्रिय, मीत के प्रीत की बाध्यता तो नहीं। मैं तेरे स्वप्न मंदिर का पूरक नहीं, मैं तो नर मात्र हूँ, देव मूरत नहीं, दे दिलासा दया दक्षता जो मुझे, वो हृदय तोड़ दूं ऐसा मूरत नहीं। मन का उपवन रहा खूबसूरत नहीं, पुष्प की अब भ्रमर को जरूरत नहीं है, यही सत्य तेरे हृदय में प्रिय, सिर्फ परछाई है मेरी सूरत। इसलिए जाग जा अब नयन खोल, इसलिए जाग जा अब नयन खोल दे, नित नृत अनित का है व्यर्थ कृत्य छोड़ दे, अपने जीवन को अब एक नया मोड़ दे, आ धरातल पे आ लौट के यौन से, इससे पहले कि मेरी दिशा मोड़ दे, इससे पहले कि साहस मेरा तोड़ दे, इससे पहले कि माया मुझे रोक दे, मोह की बेड़ियां तू स्वयं तोड़ दे। तो सुनो दो विदा, तुम हमारी नहीं, क्यों कहूं फिर तुम्हें अपनी आराधनी, मेरे सपनों सवालों विचारों में भी कल तलक तुम ही थी मगर नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर हारून रशीद। आपकी पंक्तियां सुनकर, आपकी कविता सुनकर 2 पंक्तियां मेरे दिमाग में पीछे बैठे बैठे आ गई, तो मैं भी उसको आपके साथ साझा करना सोच रही हूँ, क्योंकि मौका मिला हुआ है मुझे। कविता जो जन्म लेती है अंतर मन में विचारों की बीज से, कवि उसे धारण करता है भावनाओं के गर्भ में, समय के साथ घोषित होती है और विकसित होते हैं उसके कोमल अंग, छंद, अलंकार, रस और श्रृंगार, जिसे हम कविता कहते हैं। दरिया भी परेशान है, चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशान है, अक्स किसका है इतनी रोशनी पानी में है। So please join your hands together to welcome our honorable Vice Chancellor Professor Anil Kumar Sharma sir. Over to you. आप सभी को
खास करके विद्यार्थियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ खड़े होकर के थोड़ा सा संकोच का अनुभव कर रहा हूँ, खास करके इसलिए कि हारून जी के अच्छे शब्द, मज़ाहर जी का अच्छा स्वर, पहले का अरबी फारसी विश्वविद्यालय, बाद का भाषा विश्वविद्यालय और उसके कुलपति का दायित्व ऐसे व्यक्ति को जो गांव से आया है, भाषा पर जिसकी बहुत पकड़ नहीं है, दिमाग को तो कम लेकिन दिल को जरूर छूता है। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहूंगा कि मुझे नहीं आती हैं उड़ती पतंगों की चालाकियां, मुझे नहीं आती हैं उड़ती पतंगों की चालाकियां, गले मिलकर गला काटूं मैं वो रांझा नहीं। कहां से शुरू करूं मेरी समझ में नहीं आता। सोचा कुछ दूसरा था, कैनवास कुछ दूसरा मेरे सामने है। बड़े अच्छी खुशी खुशी मूड में आया था कि कुछ बच्चे होंगे, अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। लेकिन आज शिक्षक दिवस है, खाली उन्हीं बिंदुओं को छूंगा, बाकी बिंदु बाद में। रसखान को कभी पढ़ा था और कहीं लिखा था कि मानुष हो तो वही रसखान, बसव निज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नेकुल नंद के द्वारन। वो कहते हैं कि मनुष्य हूं तो वृंदावन में जन्म मिले, पशु हूं तो नंद के गायों के बीच में रहने का मौका मिले, पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जिसको कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, और अगर कहीं पर मैं पक्षी बनूं तो कालिंदी कूल ग्वारन के किनारे ही हमको कलरव करने का मौका मिले। तो मैं कहूंगा कि अगर अगला जन्म हो तो शिक्षक बनने का ही मौका मिले और विद्यार्थियों के बीच में ही रहने का मौका मिले, इससे बेहतर कुछ नहीं है। बहुत पवित्र है शिक्षक व्यवसाय जो है, वो सामान्य आदमियों के लिए नहीं है। और अगर आप सामान्य आदमी हैं तो कृपया शिक्षक बनने की चेष्टा न करें, हिम्मत न करें, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए एक बड़ा दिल, एक खुला दिमाग, विद्यार्थियों को साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। किसी ने लिखा था कि कौन ऐसा है जो मेरे गम को अपना गम कहे, रेत में साथ चले धूप को शबनम कहे। जब हम अपने विद्यार्थियों के दर्द के साथ उनके दर्द को समझ करके और जी सकें, जब हमें इंपैथी हो सके, तब हम अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। और अगर हमारा दर्द अलग और उनका दर्द अलग है तो हम अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। और बातें बहुत सारी सी, थोड़ा सा दाया बाया मेरे से हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ब्रीफ में 2-4 पॉइंट आपके साथ रखना चाहूँगा कि शिक्षक जो होता है वो हरदम, हमें ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत विद्वान हो गए। दुनिया में 2 चीजों की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। एक तो स्पेस की कोई लिमिट नहीं है और दूसरा मूर्खता की कोई सीमा नहीं है।
मूर्खता को थोड़ा कम कर लेते हो, लेकिन उसका लिमिट क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं। किसी ने लिखा था कि एजुकेशन इज अ प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ ओन इग्नोरेंस, कि धीमे धीमे अगर आप शिक्षा पाते हो तो अपनी मूर्खता की सीमा को थोड़ा कम कर लेते हो। जो ज्यादा समझ जाता है वो ज्यादा कम कर लेता है, जो थोड़ा समझ जाता है वो थोड़ा कम कर लेता है, लेकिन संभावना सब में बनी रहती है। तो कभी हमको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा जानते हैं, हमारे विद्यार्थी ज्यादा जानते हैं, हमारे विद्यार्थी बहुत मायनों में हमसे ज्यादा जानते हैं। टीचर तो मील का पत्थर होता है। आप चलते हो, रास्ते में कोई पत्थर मिलता है, बताता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय 3 किलोमीटर, वो पत्थर वहीं खड़ा रहता है जो 3 किलोमीटर बताता है, और आप विश्वविद्यालय पहुंच जाते हैं। टीचर वहीं खड़ा रहता है, तुमको रास्ता बता दे और आप अपने रास्ते तक पहुंच जाएं, तब टीचर का दायित्व पूरा होता है ना। टीचर अपने आप को सोचा है। हमें लगता है कि समाज में जो कमियां हैं हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं जिम्मेदार। अगर हम अपना एनालिसिस कर लें, अगर हम अपने दायित्व निभा लें, तो हमें लगता है कि समाज में कोई कमी ही नहीं रह जाएगी। बात कभी इस मुद्दे पर दोबारा होगी, लेकिन शिक्षक के सामने 4 प्रश्न जरूर है। वो हम सोच लें कि what we promised, what we achieved, हमने क्या प्रॉमिस किया था और हमने क्या पाया। What we missed, why we missed, हमने क्या खोया है और जो खोया है तो हमने क्यों खोया है। फिर what type of generation we are preparing, किस तरीके के लोग हम तैयार कर रहे हैं। और चौथा, what type of generation is required, किस तरीके की जो पीढ़ी है उसकी हमें जरूरत है। अगर हमने इन 4 प्रश्नों का उत्तर अपने आप से खोज लिया तो निश्चित रूप से हम वैसे टीचर हो जाएंगे जैसा 21वीं शताब्दी में होना चाहिए। टीचर हमको कुछ सूचना देने वाला नहीं होना चाहिए। टीचर क्लास में ठीक समय पर आने वाला नहीं होना चाहिए। टीचर हमको खाली पास फेल में सहायक नहीं होना चाहिए। टीचर हमको खाली डिग्री देने वाला नहीं होना चाहिए। इवन टीचर सम्मोहन विकसित करने वाला नहीं होना चाहिए। टीचर चिंतन विकसित करने वाला होना चाहिए। अगर वो आपके दिमाग की इंद्रियों को खोल सका तब तो वो टीचर है, और अगर उन इंद्रियों को बंद करके निश्चित सूचनाएं आपके दिमाग में दे सका तो उसने आपके साथ अन्याय किया है। अपना भविष्य भले बनाया हो, आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर किया। टीचर आज के समय में कहते हैं कि बहुत सारा सा अज्ञान जो है वो शिक्षक के माध्यम से ही डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि जो हमको कहीं से किसी ने बताया वो हमने आगे वाली पीढ़ी को दे दिया। आगे वाली पीढ़ी ने उसी तरीके से आगे वाली पीढ़ी को दे दिया। आज जब मैं इतिहास पढ़ता हूं, आज जब मैं साहित्य पढ़ता हूं, तो लगता है कि पता नहीं कितनी भ्रांतियां मेरे दिमाग में डाली गई है। जब तक शिक्षक निष्प्रह भाव से जो ज्ञान हमारे पास है उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकेगा, तब तक वो विद्यार्थियों को सही सूचनाएं नहीं दे पाएगा। जब तक रेडीमेड नॉलेज रहेगा, जब तक 2 गुणे 2 4 होगा, तब तक हम शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के साथ न्याय तब कर पाएंगे जब विद्यार्थी के साथ बैठ करके कभी हम तय कर सकेंगे कि 2 गुणे 2 4 नहीं, 2 गुणे 2 4.5 होता है, या 2 गुणे 2 4 होता है। तो इसका खाली कारण ये होता है 1 + 1 2 होता है। 4 पेज का इसका एक्सप्लेनेशन है। हमको हरदम ये तो बताया गया
कि 1+1 2 होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो 4 प्रश्न का लॉजिक है वो कभी नहीं बताया गया। हमारे सामने स्थितियां नहीं स्पष्ट की जाती है। शिक्षक को क्लासरूम का खाली हीरो नहीं होना चाहिए, शिक्षक को कम्युनिटी लीडर होना चाहिए, शिक्षक की पार्टनरशिप होनी चाहिए। पता नहीं किसी कवि ने लिखा था कि शिक्षक और विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जैसे जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो एक पक्षी दूसरे पक्षी से कहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो मिलन क्षितिज बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो जो लक्ष्य तय किए थे वो हम लोग पा लेते, या जो हमारी सांस है वो थम जाती। सफलता हम दोनों की होती, असफलता हम दोनों की होती। सफलता किसी एक की नहीं होती, असफलता किसी एक की नहीं होती। कभी असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए, न विद्यार्थी को न टीचर, किसी को नहीं निराश होना चाहिए। आप एक बार असफल होते हो, एक बार एपीजे कलाम साहब कहीं शायद सेना में भर्ती होने के लिए, एनडीए में भर्ती होने के लिए अपने घर से देहरादून में कोई टेस्ट था उसके लिए आए हुए थे। पैसे नहीं थे, बड़ी बहन के जेवर बेच करके किराए की व्यवस्था की थी और ये सोच करके कि मैं तो अच्छा हूँ, मेरा चयन हर हालत में हो जाएगा, बहन को एश्योर करके आए थे कि चयन हो जाएगा, जेवर बन जाएंगे। देहरादून आए और चयन नहीं। कहते हैं कि वो ऋषिकेश आए, ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी का आश्रम था। शिवानंद जी के आश्रम के पास जो एक पहाड़ी है उस पर वो आत्महत्या करने की दृष्टि से, मैंने किसी किताब में ही पढ़ा है, मैं वही सुन रहा हूँ, वो पहाड़ी पर बैठे हुए थे सोच विचार में और वहीं पर स्वामी शिवानंद जी टहल रहे थे। उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने देखा कि बच्चा परेशान है, लड़का परेशान है, पूछा क्या बात हुई, दिल खुल गया कलाम साहब का। उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो कहे स्वामी शिवानंद जी ने पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम इसके लिए बने ही नहीं थे, ईश्वर को इससे बहुत बड़ा काम तुमसे करवाना है। आज तुमको इसलिए इसमें सफल नहीं किया है कि उसको इससे बहुत बड़ा काम आपसे करवाना है। चलो आश्रम में भोजन कराया, घर वापस जाने की व्यवस्था करी और ईश्वर को कलाम साहब से जो काम करवाना था वो हम सब जानते हैं, उनके लिए वो छोटा काम करवाना है। कभी असफलता मिलती है तो हम कभी उसको गले से मत लगाएं। हम अगर अच्छे शिक्षक हैं तो अपने विद्यार्थियों में 2-3 भाव विकसित करें। सबसे पहला कि हम अगर क्लास में शोर हो रहा तो ये न कहें कि क्लास खराब हो गई। बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है और उस क्यूरियोसिटी को पनपने दें। हम अपनी संस्कृति में अगर देखें तो हमारे यहाँ जिज्ञासा को हरदम बहुत बढ़ावा दिया गया है। आदम हवा की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। कौन सा एक बगीचा था ना आसमान में, क्या नाम था साहब, याद आएगा कुछ? बागे बहिस, गार्डन ऑफ ईडन, बागे बहिस पता नहीं कुछ बोलते हैं। तो आपने बताया गार्डन ऑफ ईडन। तो कहते हैं कि जो हम लोगों के पूर्वज आदम हवा साहब थे, उन्होंने देखा कि वहाँ एक फॉरबिडन फ्रूट है, एक सेब दिखाई पड़ रहा है। जिज्ञासा हुई उनको कि है क्या, और उन्होंने सेब तोड़ करके खा लिया। अब अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सेब खा लिया तो उनको पनिशमेंट मिला। जिज्ञासा हुई, शांत करने की कोशिश करी, टीचर कुछ तेज रहा होगा, पनिशमेंट मिला कि जाओ पृथ्वी पर जा करके अब तुम विचरण करो, देखो तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट है। दूसरी तरफ अपनी संस्कृति में एक और घटना है। एक और छोटे बच्चे ने गलती की थी, उसने सूरज को फल समझ लिया था।
ना? किसने समझ लिया था? हनुमान जी ने। उन्होंने मान लिया कि सूरज फल है और लीले होता है मधुर फल जानू, उसको मीठा सा फल समझ करके और खा लिया तो ब्रह्मा जी से उनको डांट नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने उनको और ज्यादा शाबाशी दी कि आपकी वजह से, उससे पहले था युग सहस्र योजन पर भानु, तुम फल की तरफ बढ़े तो सूरज की दूरी कितनी थी वो पता चल गई। युग सहस्र योजन पर भानु, लीले ताहि मधुर फल जानू। उन्होंने प्रशंसा की। उसी दिन से हनुमान जी का नाम द्विज पड़ा, और द्विज इसलिए पड़ा कि दोबारा जन्म उनका हुआ, एक माँ के गर्भ से हुआ, एक उस समाज को समझने के लिए हुआ जहां बहुत सारे से प्रश्न अनुत्तरित थे। तो अगर बच्चों की जिज्ञासाएं हैं, हो सकता है उसमें कुछ उतनी अच्छी ना हो, उन जिज्ञासाओं को हम समझाएं, बढ़ाएं, उनके जो हम यूं कह रहे हैं कि उनके जो विचार हैं, आइडियाज हैं, उनके आइडियाज को हम प्रोजेक्ट में बदलें और प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में बदलें। समय बहुत हो सकता है, इसलिए मैं अपनी बात रोक करके ही मैं ये कहूँगा कि बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाए। कभी टीचर को ये रहता है कि जो बच्चे ज़्यादा साफ सुथरे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, देखने सुनने में अच्छे हैं, भाषा पर थोड़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ है, अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति बताती है कि हर कोई इंपॉर्टेंट है। राजा राम जब जंगल में गए, सीता जी का अपहरण हुआ, सुग्रीव बाली उनको मिले, तो राम ने किससे दोस्ती की थी? बाली से या सुग्रीव से? सुग्रीव से दोस्ती करी थी। बाली ज्यादा ताकतवर थे। राम की लड़ाई रावण से थी और बाली रावण को कई बार हरा चुका था। बाली रावण को अपने हाथ के नीचे दबा करके बहुत दिनों तक घूमता रहा था। अगर सीता जी का पता ही लगाना था, अगर रावण से लड़ाई ही लड़नी थी, तो सुग्रीव से ज्यादा बाली उनके लिए अच्छा साथी होता। लेकिन उन्होंने बाली का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो चाहते थे और राम चाहते थे तो जहां पर सीता का अपहरण हुआ था वो क्षेत्र उनकी मां कौशल्या के भाई के एरिया में आता था, उनसे सहायता ले सकते थे। उस समय अयोध्या बड़ा राज्य था, वो जिस राजा से कहते उसकी सहायता ले सकते थे। लेकिन उन्होंने सहायता सामान्य ही नहीं, सामान्य से भी जो नीचे थे वैसे समाज की ली। उन्होंने कहते हैं कि जो नर होने लायक भी नहीं थे, लोग कहते थे, इनको कहते थे कि आप व्यक्ति ही नहीं है, मानव ही नहीं है, ऐसे वानर की सहायता ली, वानरों की सहायता ली कि जिनको लोग कहते थे वह संस्कृत में नहीं होता है, नर का मतलब मानव होता है, तो जो मानव भी नहीं है, उन्होंने वानरों की सहायता ली, उन्होंने निषादों की सहायता ली, उन्होंने जो दबे कुचले थे उनकी सहायता ली, जिनके दिमाग का उसका उतना विकास नहीं हुआ था उतनी सहायता ली, जिनके अस्त्र शस्त्र उतने प्रवीण नहीं थे उनकी सहायता ली, और बाली की या जो दूसरे राजा थे उनकी सहायता नहीं ली। तो अगर हमें क्लास को अच्छा बनाना है तो क्लास में जितने लोग हैं, जो पीछे है, जो कमजोर है, जो अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उन हम सबको इकट्ठा करके अगर हम क्लास को आगे बढ़ाएं तो हमारा विश्वविद्यालय अच्छा होगा। कोई बच्चा नहीं पास होता है, क्लास पास होती है। कोई बच्चा नहीं, टीचर नहीं पास होता। अभी जो हो सकता नाम मुझे गड़बड़ हो जाए, हारून साहब अंग्रेजी के टीचर हैं सर ना? जी सर, यस सर। हिंदी बोल रहे थे। और आप अगर लखनऊ में, मैं कहता हूं कि प्रदेश में अगर आप सर्वे करा लो, मैं हरबलसराय बच्चन की बात नहीं करता, मैं फिरा गोरखपुरी की बात नहीं करता, लेकिन आज के समय में जो अंग्रेजी के टीचर हैं अगर वो इतनी अच्छी हिंदी बोल सके तो मुझे संदेह है कि प्रदेश में आपको एक ही दो मिल पाए, अलग बात है, नहीं तो मिल नहीं पाती। लेकिन हारून जी ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय से जुड़े। हारून जी इसलिए नहीं हो पाए
क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय अपनी जड़ों को शहर की निगाह में उतना मजबूत नहीं कर पाया। हारून जी उस दिन होंगे जिस दिन ये पूरा विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, तो हारून जी की ख्याति पता नहीं कर पाएगा। तो मुझे कहना है कि हमको इस विश्वविद्यालय को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है। लंबा खबर हो जाएगा, बात हो जाएगा। हम छोटे स्वार्थों से हमें निकलना है। जैसा विद्यार्थियों का व्यवहार होना चाहिए वैसे विद्यार्थियों का व्यवहार हो, जैसा हम लोगों का व्यवहार होना चाहिए वैसा हम लोगों का व्यवहार हो। कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, इल्म सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सब मजहब का, सब धर्मों का शिक्षा का एक ही लक्ष्य है। जैन है, उसमें कहते हैं कि कैवल्य हमारा अंतिम लक्ष्य है। बुद्ध लोग वो कहते हैं कि निर्वाण हमारा अंतिम लक्ष्य है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन शायद इस्लाम में तौहीद को बड़ा महत्व देते हैं। हिंदू धर्म है, ईसाई लोग हैं, वो साल्वेशन की बात करते हैं। और हिंदू धर्म है सा विद्या या विमुक्तये, कि विद्या वही है जो मुक्ति देती है। चाहे जितने धर्म हो, चाहे जितने मजहब हो, विद्या वही है जो हमको मुक्ति देती है। और मुक्ति किससे देती है? मुक्ति हमको संकीर्णता से देती है, मुक्ति हमको नीचता से देती है, मुक्ति हमको बुरे विचारों से देखती है, मुक्ति हमको डिस्क्रिमिनेशन से देती है। जो शिक्षा वही है, पाउलो फ्रेरो ने कहा था कि जो लेस डिस्क्रिमिनेटिव है, जो अंतर कम करती है लोगों के बीच में, वो शिक्षा है। और जो अंतर बढ़ाता है वो शिक्षा नहीं है ना। तो मैं खाली आपसे इतने आज के दिन शिक्षक दिवस पर कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी ऐसे पत्थर हैं जिनमें अंदर बड़ी सुंदर एक भगवान की मूर्ति छुपी हुई है। तो जो हमारे टीचर हैं उस मूर्ति को उकेर सकते हैं, कलाकार हैं वो। अगर टीचर पत्थर हो गया तो विद्यार्थियों में जो पत्थर के अंदर भगवान छुपा है उसको हम नहीं उकेर पाएंगे। हमारी संस्कृति इतनी रिच है कि अगर उससे हम क्लूज लेकर के अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किए तो निश्चित रूप से हम बहुत सफल हो सकते हैं। मैं तो हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां होती हैं, और जब मंदिर का प्रारंभ होता है तो मंदिर की मूर्ति में, जो मंदिर की पत्थर की मूर्ति होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है कि उससे पहले मूर्ति खाली पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन कुछ मंत्र पढ़ करके जब उस मूर्ति को आप अभिषेचित करते हैं तो कहते हैं कि उस मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। वो मूर्ति सोती है, वो मूर्ति जागती है, वो उस मूर्ति का भोग लगता है, उस मूर्ति को भोजन दिया जाता है। जो मानवीय कार्य होते हैं उस मूर्ति से सबकी अपेक्षा होती है। कहते हैं उसमें ईश्वर का प्रवेश हो गया। तो जब हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो पत्थर की मूर्ति को भोजन करा सकते हैं, नाश्ता करा सकते हैं, सुला सकते हैं, जगा सकते हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने तो हमको 3000 जीती जागती वाइब्रेंट आकृतियां दी हैं। अगर उसमें शिक्षक प्रभावशाली ढंग से मंत्र फूकेंगे तो पता नहीं कितनी ऊंचाइयों तक वो पहुंचेंगे। बस मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। शिक्षक दिवस आज बढ़िया समय, कभी मौका मिलेगा तो लंबी आपके साथ बातचीत होगी। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक लेखपाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, किसी की जमीन किसी के नाम नाप देता है ना, और जहाँ तक नाप देता है लोग वहाँ तक मान लेते हैं। एक पोस्टमैन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब तो कम हो गया है, नहीं तो पहले वही चिट्ठी लाने वाला होता था, वही चिट्ठी लिखने वाला होता था, वही चिट्ठी पढ़ने वाला होता था। और तीसरा टीचर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो बताने वाला होता था कि भाई आप कैसे आगे बढ़ें या देश समाज दुनिया में क्या हुआ। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो ईद, बकरीद, होली, दिवाली
पोस्टमैन 2-2 रुपए की बख्शीश मांगता फिरता है। क्यों मांगता फिरता है? क्योंकि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो चेंजेस आए, उन चेंजेस के साथ डाक विभाग अपने आप को अपडेट नहीं करता है। पोस्टमैन की स्थिति से हम दुखी हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंता हमें इस बात की है कि अगर हमने अपने आप को जो दुनिया में परिवर्तन आ रहे हैं उसके हिसाब से परिवर्तित नहीं किए तो कहीं हमारा हाल भी पोस्टमैन जैसा ही ना हो। आप में बहुत संभावनाएं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक क्लास थी, एक बच्चा सो गया, टीचर ने इधर से देखा तो कहा, रामलाल जी, श्यामलाल जी को जगाइए, सो रहे हैं। रामलाल जी ने कहा कि सर ये बात मेरे से मत कराइए, इनको आप ही ने सुलाया है, आप ही जगाइए। Thank you so much, sir, for your wonderful, encouraging and motivational, insightful speech. उपलक्ष्य को मैं 2 लाइनों में कोशिश करूंगी जो भी सर ने कहा उसको सम अप करने की कि all our knowledge is begins with a sense, proceeds then to the understanding and ends with reason. और एक बात और जो सर ने कहा कि a journey of 1000 miles begins with a single step. तो वो स्टेप हम आज से ही शुरू करते हैं और जो कुछ भी सर ने अपनी स्पीच में साझा किया है, हम ये आश्वासन देते हैं सर को कि उसको अपने चरित्र में, उसको अपनी भावनाओं में, आत्मा में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए, क्योंकि विधिवत हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया था और उसको विधिवत समापन की ओर अग्रसर हैं हम, जिसके लिए हम हमारे रिस्पेक्टेड कुल सचिव महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें और उसके बाद राष्ट्रीय गान होगा। उस राष्ट्रीय गान विश्वविद्यालय के सभागार में शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर मंचस्थ एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परम आदरणीय अनिल कुमार शुक्ला जी महोदय, आपकी प्रेरणा जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय स्तर पर पहली बार शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया जा सका है, इसके लिए आपका अभिनंदन करते हुए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता एवं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभागार में मंचस्थ सांस्कृतिक समिति की चेयरपर्सन प्रोफेसर तनवीर खतीजा एवं सांस्कृतिक समिति के अन्य सदस्यगण के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना मेरा परम दायित्व बनता है, जिनके द्वारा इतने अवधिमेय समारोह सफलतापूर्वक आयोजित हो सका है। सभागार में उपस्थित सरकार के सरकारी अध्यक्षगण, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, गुलाम शासक एवं अन्य सभी शिक्षकगण को भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी उपस्थिति के कारण शिक्षक दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। समारोह में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिसके कारण शिक्षक दिवस का आयोजन और भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत में शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ मंचस्थ माननीय कुलपति जी को पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सांस्कृतिक समिति एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।